हाय, सो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पॉइंटर्स का साइज क्या होता है एंड हम पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त क्यों डिफरेंट डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इन पॉइंटर्स देखा होगा, कैरेक्टर पॉइंटर देखा होगा। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज डेटा टाइप्स इन पॉइंटर्स? सो लेट्स स्टार्ट। हाय, so before moving forward, let me introduce you to Newton School. Newton School is an online platform which trains you to start a tech career. It is meant for students, working professionals, and also for women with no tech background. It has partnership with more than 300 companies, as you can see on the screen. So let's see how the placement program works. Newton School first trains you for 6 months and helps you becoming an amazing full stack developer. Once this is done, it makes sure that the student get placed in some of the top-notch companies in the country. For that, they have placement tie-ups with almost every major company in the country. But the best part is, all of this is completely free of cost, until and unless you get placed with a minimum CTC of 5 lakh rupees. Yes, you heard it right. It's completely free. As you can see, it's zero fee till placement. So, what you're waiting for? Do go and check their website. All the links are in the description. So, let me do one thing. Instead of going through theoretical part, let me do this thing in a reverse fashion. पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ and let's try to guess कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है. So let's go to the code editor. Now let's see. So मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो कोड है लिख रखा है आपके लिए. And now you need to guess what will be the output. So मैंने यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है and कैरेक्टर डिक्लेयर कर रखा है. And then respectively what I'm doing is I'm creating an integer pointer as well as a character pointer. और मैं इन दोनों को assign कर रहा हूँ उनके addresses. Now what I'm doing is I'm just printing the size of these two pointers. So now in the comment section just tell me what will be the output for these two pointers. So I hope आपने आंसर यहाँ पे कर दिया होगा. So let's see what is the output. Now if you observe, जो size है integer pointer का वो भी 8 है and the size of character pointer is also 8 bytes. So ऐसा क्यों है कि दोनों का साइज इक्वल है? अगर मैं assume करूँ कि मेरा सिस्टम जो है 64 बिट सिस्टम है, दैट मीन्स कैरेक्टर का साइज तो हमेशा 1 बाइट ही होता है. So though the character pointer should have a size of 1, it is still showing as the size of 8 bytes. Just for your clarification, let me show this also. अगर आप देखेंगे तो मेरा जो इंटीजर का साइज है वो 4 bytes है. Though my system is 64 bit, मेरा size of integer is 4 bytes, not 8 bytes. But मेरा जो size of integer pointer है वो 8 bytes दिखा रहा है and size of character pointer is also showing as 8 bytes. ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरा सिस्टम जो था, it has a size, integer had a size of 4 bytes, whereas the character has a size of 1 byte, right? But इन दोनों के बावजूद हमारा जो integer pointer था और जो character pointer था वो 8 bytes के थे. ऐसा क्यों हुआ? Let's try to understand this thing. Pointers का मतलब क्या होता है? Pointers are variables which point to some addresses, right? So pointers का जो size होता है ना, it is not dependent on the data type which we are declaring with them. अगर किसी को इस बात की कंफ्यूजन है और किसी को अगर ये लगता है कि इंटीजर पॉइंटर IPTR का जो साइज होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन इक्वल टू 4 बाइट्स, जस्ट बिकॉज इसका जो टाइप है, जस्ट बिकॉज इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो वो गलत है. बिकॉज एज आई सेड, दो पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स बट दे आर स्पेशल वेरिएबल्स, राइट? सो इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. व्हाट इज दैट? दैट इज इनका जो साइज होता है ना, अनलाइक इंटीजर a लिखता और मैं इसका साइज निकालता तो ये तो मुझे डेफिनेटली 4 बाइट्स आता. बट व्हेन आई डिक्लेयर अ इंटीजर पॉइंटर एंड इफ आई ट्राई टू फाइंड द एड्रेस, इफ आई ट्राई टू फाइंड द साइज, देन इट विल नॉट बी 4 बाइट्स बट रादर इट विल बी 8 बाइट्स. अभी 8 बाइट क्यों है? इट इज ऑन माई सिस्टम. अगर आपका सिस्टम 32 बिट होगा तो दिस विल बी 4 बाइट्स ओनली. ओके, बट ऐसा क्यों हो रहा है इसे समझते हैं अभी. ये इसलिए हो रहा है ना, बिकॉज दीज एड्रेसेस आर ऑफ 8 बाइट्स एंड एड्रेसेस हमेशा 8 बाइट्स के ही होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा टाइप व्हिच यू आर डिक्लेयरिंग विद देम. मैं समझाता हूँ कैसे. सी, अगर हमारा जो मेन मेमोरी होता है ना, नाउ लेट्स से दिस इज माय मेन मेमोरी, ऑलराइट? सो एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी बाइट आई विल हैव अ यूनिक एड्रेस एसोसिएटेड विद इट, राइट? ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था. दिस काइंड ऑफ मेमोरी लेआउट को हम बोलते हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, राइट? So this is byte addressable memory. इसका मतलब for every pair of there is an address associated with it. तो ये A1 हो गया, which is the address 1. This is A2, which is the address 2. ये A3 होगा, ये A4 होगा, and so on and so forth. All right. Now, when I say a system is 64 bit, इसका क्या मतलब है? आपने ये वर्ड डेफिनेटली बहुत बार सुना होगा.
I have a 32-bit system, I have a 64-bit system. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है there is a 64-bit address space which my system supports. इसका मतलब अगर मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ my system can support up to 2 to the power of 64 minus 1 locations. इतनी लोकेशंस को मेरा जो सिस्टम है ना वो एड्रेस कर सकता है. दैट इज द रेंज ऑफ एड्रेसिंग कैपेसिटी विच आई हैव, माई सिस्टम हैज. सो दिस इज अ बिग नंबर, राइट? ये बहुत बड़ा नंबर है. सिमिलरली इफ आई से माई सिस्टम इज 32 बिट्स, इसका मतलब क्या है? मेरा सिस्टम जो है ना 2 power 32 विच इज अ वेरी बिग नंबर -1 लोकेशंस को पॉइंट आउट कर सकता है. मतलब दिस इज द रेंज ऑफ नंबर्स विच माई सिस्टम कैन यूनिकली आइडेंटिफाई. आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हेन आई से माय सिस्टम इज 64 बिट, इसका मतलब 2 to the power of 64 -1 लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है यूनिकली. सिमिलरली व्हेन आई से माय सिस्टम इज 32 बिट्स, इट मींस माय सिस्टम कैन आइडेंटिफाई दीज मेनी लोकेशंस. सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ऑलराइट, लेट्स सी फर्दर नाउ. सो नाउ लेट्स सी, ये जो है ना 2 power 64 -1 लोकेशंस है मेरे मेन मेमोरी में, बिकॉज माय सिस्टम इज 64 बिट्स. ओके, तो अब जो हर एक एड्रेस का साइज होगा ना, दैट विल बी ऑल्सो 64 बिट्स ओनली. ये एड्रेस का साइज है 64 बिट्स, राइट? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 बाइट्स, राइट? बोथ आर इक्विवेलेंट. इसीलिए जब हम देख रहे थे कि पॉइंटर का जो साइज है, वेदर इट्स इंटीजर पॉइंटर, वेदर इट्स कैरेक्टर पॉइंटर, क्योंकि ये कैरेक्टर पॉइंटर और ये इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करते हैं, द साइज ऑफ द एड्रेस इज फिक्स्ड बिकॉज दिस इज हार्डवेयर डिपेंडेंट. अगर मेरा सिस्टम 64 बिट का है तो वो हमेशा 64 बिट का ही रहेगा, राइट? इसीलिए जो एड्रेस का साइज भी है ना, दिस इज 64 बिट लॉन्ग. ये 64 बिट लॉन्ग होने वाले हैं. सो हर एक एड्रेस स्पेस जो है ना, हर एक एड्रेस का जो साइज है वो 64 बिट ही होने वाला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेटा टाइप. ये तो फिक्स होने वाली है. इसीलिए दिस इज द रीजन क्यों साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर हो चाहे साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर हो, वो हमेशा 8 बाइट्स के होने वाले हैं. ठीक है? सो फिर हमारा ऑब्वियस क्वेश्चन उठता है, देन व्हाई डू वी हैव दिस डिफरेंट डेटा टाइप्स एसोसिएटेड विद एवरी पॉइंटर? अगर सारे पॉइंटर्स का साइज एक ही है, ठीक है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस इंट एंड कैरेक्टर या फिर फ्लोट? ये सब डिक्लेयर करने का मतलब क्या बनता है इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंटर? वेल, द आइडिया हियर इज दीज डेटा टाइप्स विच यू डिक्लेयर बिफोर द पॉइंटर्स, which you write before the pointers while declaring them, इनका इस्तेमाल किया जाता है to dereference the pointers. एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको और अच्छे से क्लियर होगा. Let's say मैंने एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट किया यहाँ पे, and let's say this is pointing to a integer variable, और ये जो मेरा a है ना, this is holding a value 10. Alright, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरा जो इंटीजर है ना, इसका जो साइज है वो 4 बाइट्स है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ दिस थिंग. इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होने वाला है. ठीक, सो दिस इज द, सिंस दिस इज गोइंग टू बी 4 बाइट्स, लेट मी जस्ट मेक दिस वे. सो अगर मैं यहां देखूं तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बाइट. ठीक, तो इसमें इट विल बी, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर 10. ठीक है, दिस इज ऑल गोइंग टू बी जीरोस. सो मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं इनको जस्ट टू इंडिकेट दैट दीज आर ऑल आर जीरोस, बट ओवरऑल क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 bytes, right? अब now when you declare a pointer of integer type, तो होता क्या ना, this ptr is basically pointing to the base address of this contiguous block of 4 bytes. ठीक है? अब while dereferencing, जब हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम हम ऐसे लिखते हैं ना $ptr and we are trying to dereference the pointer, or when we are trying to perform any sort of operation on this pointer, compiler क्या करता है, based on the data type with which it was declared, वो उतने बाइट्स को यूज करता है फॉर गेटिंग द वैल्यू. अगर मुझे पता है कि पॉइंटर का जो टाइप है वो इंटीजर है, सो व्हाइल डीरेफरेंसिंग इट, व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम दिस बेस पॉइंटर मैं 4 बाइट का कैलकुलेशन लूंगा. दैट इज, लेट्स से इसका एड्रेस है ये, सो इसका एड्रेस होने वाला है ये. दीज आर द बाइट एड्रेसेस, राइट? एज आई सेड, मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, सो हर बाइट का एक अपना एड्रेस होने वाला है. सो माई पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस बेस एड्रेस 0x10 को. While now let's say if I try to print this value, when I try to print this value, होता क्या है ना, my compiler is going to see the data type of this ptr जो कि integer है, therefore it knows that the size of integer is 4 bytes. So from this ptr, from this base address, it will add 4 bytes to it, therefore it knows that it needs to calculate, it needs to take in account all these 4 bytes
टू गेट द वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपाइलर को पता ही नहीं होता कि ये किस टाइप का है, सो हाउ वुड द कंपाइलर गेट टू नो कि कितने बाइट्स को मैं अकोमोडेट करूं टू गेट द फाइनल आउटपुट। ऑलराइट, उसी तरह से इफ आई लेट्स से मैंने इंटीजर पॉइंटर की जगह मैंने इसको कैरेक्टर पॉइंटर कर दिया होता, तो क्या होता, अगर मैं ptr को कैरेक्टर पॉइंटर कर दूंगा, देन व्हाइल डीरेफरेंसिंग इट पॉइंटर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, ptr में ना फ्रॉम दिस बेस एड्रेस इट विल जस्ट ऐड 1 बाइट टू इट। तो 1 बाइट ऐड करने का क्या मतलब हो गया, वी आर जस्ट ऑन द बेस एड्रेस। इसका मतलब व्हाइल डीरेफरेंसिंग इट द कंपाइलर विल ओनली टेक दिस मेमोरी लोकेशन एंड इट विल ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द वैल्यू आउट ऑफ इट। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी ना, जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसकी ASCII वैल्यू लेगा और उसके ASCII वैल्यू को अकॉर्डिंगली एज पर अ नीड इट विल गेट कन्वर्टेड। तो आइडियली क्या लेना चाहिए था उसे पूरा का पूरा ये 4 बाइट लेना चाहिए था, बट नाउ इट इज ओनली अकोमोडेटिंग द फर्स्ट बाइट। क्यों? क्योंकि अब जो टाइप है ना वो कैरेक्टर है। ऑलराइट, सो दिस इज द रेलेवेंस। इसीलिए हम डेटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं व्हाइल डिक्लेयरिंग द पॉइंटर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैंने अपने पॉइंटर को ना डबल कर दिया, सो व्हाट इफ आई मेक दिस एज डबल पॉइंटर, डबल स्टार ptr। सो अब क्या होगा, एंड लेट्स से आई असाइन सम वेरिएबल टू इट विद द वेरिएबल्स एड्रेस आल्सो, और ये a जो है ना दिस इज आल्सो नाउ ऑफ टाइप डबल। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी जो ptr है ना दिस विल बी पॉइंटिंग टू अ बेस एड्रेस of some memory location, right? बट अब ये जो होगा ना ये 8 बाइट्स होंगे इन लेंथ, 8 बाइट इन लेंथ। सो जब हम अब नाउ इफ आई ट्राई टू डीरेफरेंस दिस काइंड ऑफ पॉइंटर विच इज ऑफ साइज डबल, तो जो कंपाइलर होगा ना इट विल टेक ऑल दिस 8 बाइट्स इनटू अकोमोडेशन टू डीरेफरेंस द वैल्यू। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। ठीक है, इसीलिए जब हम पॉइंटर कन्वर्शंस करते हैं ना, दैट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग वन पॉइंटर टाइप टू अनदर पॉइंटर टाइप, तो वैल्यूज चेंज आती है। सो आई होप आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज जस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस। सो आपके सामने ये कोड है यहाँ पे, एंड आई वांट यू टू मेक द आउटपुट गेस इन द कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस कोड एंड आई विल टेल यू द आंसर ऑल्सो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो लेट मी टॉक अबाउट न्यूटन्स टूल्स लॉन्चपैड। एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू गेट ऑल दीज 5 बेनिफिट्स। सो न्यूटन स्कूल जो है वो आपको जॉब रेडी बनाता है, बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर इंडस्ट्री रेलेवेंट और कोई फालतू की चीज़ नहीं है यहाँ पे। इट इज़ अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड विद अ मिनिमम ऑफ 5 लाख CTC। इट इज अ सेल्फ पेस्ड कोर्स, आप अपनी स्पीड से और अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं। सो इट रिक्वायर्स 0 सेटअप। व्हाट डज इट मीन, मतलब आपको ना कोई कोड स्टूडियो इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना कोई IDE, सब कुछ इनके ब्राउजर प्लगइन के थ्रू आप वेब में ही एक्सेस कर सकते हैं। सो इट मेक्स थिंग्स वेरी हैसल फ्री। दे हैव गॉट डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म for every video or every concept which you learn on the platform. You have a doubt solving, so you can post a doubt there and the experts will get back in touch with you within 24 hours and clear all your doubts. So